नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आज बात सरोकार की करेंगे। आज बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की और उसको लेकर जागरूकता कितनी बढ़नी चाहिए और अब तक कितने ऐसे मामले आए हैं उनकी। 90 के अंतिम पड़ाव में एक ऐसी एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा जगत में एंट्री ली जिसने अपनी डेब्यू फिल्म परदेस से सबका दिल जीत लिया था। खूबसूरती और मनमोहक अदाओं वाली इस अदाकारा ने शाहरुख खान के साथ रोमांस कर काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन मौजूदा वक्त में यही एक्ट्रेस बिल्कुल बदल चुकी हैं। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है ये बताएंगे। हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की। तस्वीर देखकर यकीनन पहचानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, पर यही महिमा चौधरी हैं। इन दिनों महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और फिलहाल वो इसके रिकवरी टाइम पीरियड पर चल रही हैं। इस बीमारी से महिमा चौधरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसका अंदाजा आप उनके एक वीडियो से लगा पाएंगे। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर महिमा की एक लेटेस्ट वीडियो शेयर की है, जहां पर वो अपनी मुस्कान के पीछे कैसे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वो क्या कुछ कहती हैं, आपको हम सुनवाते हैं। What are you thinking? I don't know. Just trying to concentrate on the camera and see that he gets my focus. After how long are you doing this photo shoot? Oh, photo shoot I do at home, but I do it with my hair that I've bought, which I think is my hair. So what happened? Tell me the story of I called you up for this role in the film Signature. It's uncanny. You called me at a time when I'm just getting my infusion and the nurses are standing on me, and I know you're in the USA. So when I see it go Anupam Kher USA number, I was like, he's calling me because it's urgent. You know, because we don't call and chat, hey, what's happening then? Yeah. So I said, let me answer this. So I take it, and you start saying that, you know, I want you to do a film. And I say, you know, I would love to do, but can you wait? And you said, no, I can't wait. Why do you want me to wait? And why is there so much noise in your house? And I said, I couldn't lie because all the nurses were around me. So I said, I'm not at home. Where are you? So I'm like, I'm That's in the not hospital. the way I talk. You're talk. Huh? I was nice to you. So, no, surprisingly, ever since I lost my hair, I was getting a lot of calls for, you know, like web series and this and that. And I was like, God, why am I getting calls now when I don't even have hair? So I didn't tell them. Okay, so you. But with you, I just can't like not tell you that I don't want to do your film. So I said, okay, and you started rattling off the roll, and he's like, this is, and you like this, and like this, and then you have to pay this. And I was like, okay, are you going to do it? And I was like, yeah, but are you going to do it? So I was like, okay, but I need to talk to you. So then I spoke to you in the night, and I told you that, is it okay if I come to the sets with a wig? And you said, why would you come with a wig? And I said that I've lost my hair, I've just gone through treatment. I don't know, it just gets emotional. That's okay. I think you're the most courageous person. I just want to thank you for being okay with it. सिर्फ महिमा चौधरी नहीं, टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल की पिछले दिनों ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की, अपना हेल्थ अपडेट भी दिया। छवि ने अपने पोस्ट में यह जाहिर किया कि उन्हें दर्द इतना ज्यादा हो रहा है, कोई पेन किलर भी असर नहीं दिखा रही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें डांस करने और फिर सोशल मीडिया पर रील्स डालने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है। इसी के साथ ताहिरा कश्यप, बारबारा मोरी, ये भी कुछ बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ी है। लेकिन आज हम बात सरोकार की में ब्रेस्ट कैंसर की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज नहीं बल्कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। महिलाओं के मरने की संख्या ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा कारण महिलाओं के मरने का ब्रेस्ट कैंसर सामने आ रहा है। आंकड़े कुछ ऐसे ही हैं और ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस गंभीर बीमारी को लेकर महिलाएं कितनी जागरूक हैं, हमारा समाज कितना जागरूक है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और कैसे हम इस ब्रेस्ट कैंसर की जंग में महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं, पेशेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि कैसे उनको इस जंग में लड़ना है। आज बात सरोकार की में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे और हमारे उस मेहमान पैनल में
जो लोग होंगे उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर क्या है, इस जंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और बड़ी बातें बताते हैं इस ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर। महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 15% कारण ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर हर साल दुनिया भर में करीब 2 मिलियन से ज्यादा महिलाओं को प्रभावित करता है। आंकड़ा अपने आप में डरा देने वाला है, लेकिन क्या जागरूकता इतनी है? स्तन कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, इसलिए महिलाओं को पहले से जागरूक रहना होगा। 2018 में स्तन कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या 62,700 थी। महिला आबादी के बीच कैंसर से होने वाली मौतों का लगभग 15%। 80% ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के कारण होता है। महिलाओं को मौत का खतरा भी सबसे ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाओं में यह कैंसर होता है, पुरुषों में भी होता है। शुरुआत में ब्रेस्ट कैंसर एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षणहीन हो सकता है, इसीलिए पहचानने में देर हो सकती है। 35 साल की उम्र के बाद पहले बच्चे को जन्म देना भी स्तन कैंसर के लिए एक जोखिम कारक हो सकता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दवाएं भी स्तन कैंसर के जोखिम को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर गगन सैनी और डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर की इस जंग में महिलाओं को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं। डॉक्टर्स, आप दोनों का ही स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। गगन जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक गंभीर बीमारी है और आज हम भले ही इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड पर इसका अटैक हुआ, पर हम जानते हैं कि कितनी आम महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं और शायद उनमें से बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो पहले यही चाहती हूँ कि आप ये बताएं, क्या है ब्रेस्ट कैंसर? डॉक्टर गगन जी, ब्रेस्ट कैंसर स्तन का कैंसर है, बट स्तन जो होता है, जो लेडीज का जो ब्रेस्ट होता है, वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। उसकी जो भगवान ने जो स्थापना की है वो मिल्क के लिए की है, ताकि बच्चे को दूध दिया जा सके। सो उसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क सिक्रीट करते हैं, उन ग्लैंड्स की जो लाइनिंग होती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो वो लाइनिंग के सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा होता है। उस डक्ट का कार्सिनोमा होता है जो इन्फिल्ट्रेट करता है, जो आपने बताया भी था अभी। सो इन्फिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा, सो ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। एंड इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जांच जो है उसके बहुत हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन का जो मिसमैच होता है, कभी कभी जो हमारी जो पिल्स होती हैं, जो एस्ट्रोजन वाली पिल्स होती हैं, उनसे हो सकता है। या फिर कोई लेडी है जिसका प्रेगनेंसी जो है वो बहुत लेट है, तो बॉडी में एस्ट्रोजन का लोड जो है वो काफी समय तक रहता है। जी, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोजेस्टेरोन का लोड बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लोड ठीक है। सर, आपकी आवाज मुझ तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिलहाल हेमिका जी का रुख करूंगी। डॉक्टर हेमिका, देखिए, महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है स्तन। हालांकि इस तरह की बीमारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सी महिलाएं पीछे हट जाती हैं, बात नहीं करना चाहती। समाज भले ही जितना ज्यादा मॉडर्न बन जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन वो डिफरेंस आज भी है कि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर नहीं बता पाती हैं। और जब बात आती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो शायद बहुत कुछ नोटिस करती हैं, चेंजेस अपने अंदर, अपनी ब्रेस्ट के अंदर, लेकिन उसे बीमारी के तौर पर सोचने की जहमत नहीं उठाती हैं, और अगर लगता भी है तो आगे आना नहीं चाहती। क्या लगता है कि जागरूकता कितनी कम है, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कैसे हो सकती है? देखिए, जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जिस लेवल पर होनी चाहिए। और जैसे आपने बताया, फीमेल्स थोड़ी हिचकती हैं, थोड़ा सेंसिटिव प्राइवेट बॉडी पार्ट है, तो इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो एकदम से वो सामने नहीं आती। इसके लिए कई सारे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है महिलाओं को, कि वो खुद अपना घर पे ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सके, और अगर उनको उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी लगे तो वो डॉक्टर की सलाह मशवरा जल्दी लें। मैमोग्राफी भी रूटीनली कराते रहें। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में अगर स्तन की स्किन पे किसी तरह के चेंजेस हैं, जैसे कि ऑरेंज पील अपीयरेंस कहते हैं,
जैसे कि संतरे के छिलके में डिंपल्स होते हैं, उस तरह से डिंपलिंग हो, कोई लंप हो किसी प्रकार का, और लंप या गुठली में किसी प्रकार का दर्द जरूरी नहीं है। आमतौर पे मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट कैंसर के लंप में शुरू में दर्द नहीं होता है, और अगर किसी प्रकार का एक साइड के स्तन से किसी तरह का सिक्रीशन शुरू हो जाए बिना प्रेगनेंसी के, बिना लैक्टेशन के, बिना बच्चे के, तो वो भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि ये स्तन का कैंसर होने की संभावना है। और आप अपना घर पे एग्जामिनेशन में अपने पाम को यूज कर सकते हो, और एग्जामिनेशन के अलावा गुठलियां या लंप्स को ढूंढ सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और इसमें मेरी बहुत दरखास्त है कि लोगों से कि आप डॉक्टर के पास जाने से हिचकिए मत। मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, उनके पास जाइए और अपना एग्जामिनेशन कराइए, और आपको रिस्पेक्टफुली और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। डॉक्टर गगन, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन महिलाएं खुलकर आगे नहीं आ पाती हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि हमने एक फैक्ट यहाँ पर कोट किया है, उस फैक्ट में हमने ये बताया है कि 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं होती हैं, जब वो बच्चे को जन्म देती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हालांकि ये सबको नहीं पता है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम चाहते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग तब करें जब पूरी तरह से हम लोग इंडिपेंडेंट हो, हम लोग फैमिली को संभालने लायक हो, तब जाकर फैमिली प्लानिंग की जाती है। लेकिन अगर ये ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है, तो आखिर कैसे बचा जाए अगर 35 साल की उम्र के बाद फैमिली प्लानिंग की जा रही है? मैडम, इसका बचने का तो कोई तरीका नहीं है जी। फिर तो नेक्स्ट तरीका यही है कि हम, देखिए 2 लेवल होते हैं। एक होता है कि किसी चीज को होने से पहले आप रोक लें, तो वो होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, और दूसरा होता है उसके बाद अर्ली डिटेक्शन। सो जब अगर हो ही रहा हो तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का क्या मतलब, लेडी जो 35 टू 42 इयर्स की लेडीज है, जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है, उनकी जो ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से मैमोग्राम के अंदर हमेशा फाइंडिंग्स ठीक नहीं आती। इसलिए 40 के बाद मैमोग्राम बोला जाता है, बट 40 से पहले ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन बोला जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इजी टू लर्न। मैडम, इफ आई कैन आस्क यू, मेरी वॉइस अब क्लियर है ना अभी? तो अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? गगन जी, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए आप दुनिया भर के यूट्यूब वीडियोस ढूंढ सकते हैं, बट बेसिक बात ये है कि अपने हाथ को ऐसे करके सेंसिटिव पोजीशन में करके, अपने हाथ को सेंसिटिव पोजीशन में करके, और टाइम टू टाइम महीने में एक बार चेक करते रहना, ताकि कोई भी लंप हो वो पकड़ा जाए। सो दैट इज फेज नंबर 1, दैट इज एडवाइस नंबर 1। एडवाइस नंबर 2 इज ऑब्वियसली 40 के बाद मैमोग्राफी। सो ये है अर्ली डिटेक्शन, बट ऑफ कोर्स वी डोंट वांट इट टू हैपन इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसके लिए इट माइट बी अ गुड आइडिया टू प्लान द फैमिली लिटिल अर्ली, so that the body is rid of the cycles of continuous estrogen stimulation। जी। अंग्रेजी में इसलिए बोला मैंने क्योंकि सारे मेडिकल टर्म्स हैं। बेसिकली ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल्स जो है वो ब्रेक हो जाते हैं अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उससे बॉडी को के अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं लेडीज के लिए, एंड वन ऑफ देम इज रिडक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क। हेमिका जी, हमने ये भी फैक्ट कोट किया है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है कभी कभार ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि आप पहचान नहीं सकते। और गगन जी ने कहा कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में गंभीर बीमारी ना बने। लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि पहले स्टेज पर उसे पहचान नहीं पाएंगे, और जब शायद वो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी का रूप ले लेगा, तब हम उसे पहचान पाएंगे। तो एसिम्प्टोमेटिक अगर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मामले, तब क्या किया जाता है? अगर उस स्टेज को हम पार कर जाते हैं जब वाकई अर्ली डिटेक्शन हो सकता है और नहीं पहचान पाते, तब क्या होता है? देखिए, ऐसी सीमा रेखा नहीं है कि ये अर्ली डिटेक्शन था, ये नहीं है। ग्रेडिंग है, स्टेजिंग है, जो कि कंटिन्यूअस है जी। तो किसी भी स्टेज पर पकड़ा जाता है, आपको हताशा नहीं लेनी चाहिए। और हमारे पास आज की डेट में ट्रीटमेंट्स है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले कि सर्जरी से या तो लंप अगर है छोटे अर्ली स्टेज पर है तो लंप को निकाल दिया जाता है, अगर आगे का स्टेज है तो पूरे ब्रेस्ट को भी निकाल सकते हैं, जिसे मैस्टेक्टमी कहते हैं। एक्सिलरी ग्लैंड्स, जो दूसरे हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उनको भी निकाल दिया जाता है। अगर स्प्रेड होता है तो जहां जहां स्प्रेड होता है, जितना हम निकाल सकते हैं उतना निकाल देते हैं। फिर हमारे पास कीमोथेरेपी आती है कि दवाइयों के द्वारा, और रेडियोथेरेपी। तो ये सारे, और इम्यूनोथेरेपी भी अब आजकल बहुत डेवलप होने लग गई है और अच्छी मोडालिटीज आने लग गई हैं उसमें भी।
तो ये सारे हमारे पास इतने सारे प्रावधान हैं, तो हमें हताशा नहीं लेनी कि हमारा स्टेज या ग्रेडिंग ज्यादा है और हम अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई फाइन लाइन नहीं है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर गगन, कितने स्टेजेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और हर स्टेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं पहले से लेकर आखिरी स्टेज तक, क्या क्या हम कर सकते हैं इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और जूझने के लिए और आगे तक सरवाइव करने के लिए? जी जी सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैडम, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि हम डिफरेंट स्टेजेस के लिए क्या डिफरेंट सावधानियां बरत सकते हैं, ये आपका मेन क्वेश्चन था। जी जी। सो हमारी जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट बाकी स्टेज एंड के अंदर हमारा ब्लड प्रेशर जनरली इसको अपने समय तक कंट्रोल रखने का होता है। बाकी स्टेज के अंदर हमारा इंटेंशन होता है कि बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। स्टेज 1 में ऑब्वियसली सेल्स कम होते हैं बॉडी में, तो जड़ से खत्म होने का चांस ज्यादा होता है। 2 के अंदर उससे कम होता है, एंड 3 में उससे कम होता है, एंड 4th में होता नहीं है प्रैक्टिकली। सो उससे रिलेटेड क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें सबसे पहले तो ये है कि पूरी की पूरी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अगर हमारी स्टेज कुछ भी स्टेज है हमारी, हमें ट्रीटमेंट पूरी की पूरी करानी चाहिए। हमें उस ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की एडवाइस को एनकरेज करना चाहिए, उस एडवाइस को मानने की कोशिश करनी चाहिए जो डॉक्टर दे रहा है। ऑब्वियसली कभी कभी इम्पॉसिबल होता है किसी एडवाइस को फॉलो करना, तो एक अलग बात है जो आपके बस से बाहर है, बट जस्ट आपके कुछ बिलीफ्स हैं, उन बिलीफ्स के चक्कर में आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो। हमारे पास बहुत बार पेशेंट्स आते हैं जी, हमने कीमो नहीं करानी, उससे बाल झड़ जाते हैं। अब देखिए कितना आपने इतना मरमई आपने जो वीडियो दिखाया, इस वीडियो को जब भी देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि महिमा चौधरी ऑब्वियसली एक ऐसी खुश, शी इज अ वेरी प्लेजेंट पर्सन ऑन द स्क्रीन। बड़ी फीलिंग होती है कि इनको देख करके, और इसी तरह से बाल उड़ते हैं तो सभी को बुरा लगता है। बट फैक्ट इज के इसको एम्ब्रेस करना होता है, और किसी चीज के बाल उड़ना इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से हम एक जानलेवा ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, जानलेवा बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। और बाल वापस आ जाते हैं 4 महीने में, नहीं तो 6 महीने में वापस आ जाते हैं बाल, पूरे के पूरे डेंस बाल आ जाते हैं। सो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते। किसी के दिमाग में रेडियोथेरेपी के अगेंस्ट कोई थॉट्स हैं, किसी के दिमाग में कीमो के अगेंस्ट कोई थॉट्स हैं। सो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढें और उसकी अच्छी एडवाइस माने, एंड अपनी जो है वो पर्सनल बायस से ट्रीटमेंट ना कराएं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं। आई थिंक यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है मैडम। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इस प्रिकॉशन को लोग ले भी और माने भी। हिमिका जी, देखिए हम देख ही रहे हैं कि महिमा चौधरी की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से जूझी और अब एक बहुत बड़ी बीमारी से वो लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि वो कितनी खुशमिजाज होकर लड़ रही हैं, कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं बीमारी को, लेकिन हाँ, वो जो दुख है वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। लेकिन जब किसी महिला को ये पता चलता है कि एक प्राइवेट सेंसिटिव बॉडी पार्ट जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी की शिकार हो चुकी है और उस बॉडी पार्ट को प्रभावित बीमारी कर रही है, तो बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्टेंस। क्योंकि आज इस प्रोग्राम के जरिए बात करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो पाल रखे हैं, हमने बहुत सारी चीजें हैं जो सोच रखी हैं, खासकर महिलाओं के लिए कि एक महिला को ऐसा लगना जरूरी है, उसकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये हम लोगों ने एक नोशन बना दिया है। तो महिलाएं बहुत कम जो है वो आगे आती हैं, झिझकती हैं, वो चाहती हैं कि हम परफेक्ट दिखें। अगर हमारे इस प्राइवेट सेंसिटिव बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो शायद कोई और दिक्कत ना हो जाए, क्या सर्जरी तो नहीं होगी, ऑपरेशन तो नहीं होगा, हम कैसे दिखेंगे, लोग हमें कैसे जज करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मुझे लगता है कि आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हेमिका जी। जी, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फैमिली मेंबर्स और स्पाउस का है। कई बार स्पाउस अगर बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे और अगर बॉडी इमेज को लेकर एक्सेप्टेंस दिलवाएं पेशेंट में, तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो इतना कॉन्शियस नहीं रहते और इतना सेल्फ क्रिटिकल या सेल्फ डाउट में नहीं जाते कि उनकी अपीयरेंस खराब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे या वजन कम होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। तो कोई भी अगर बुरी खबर कभी मिलती है जो कि ग्रीफ का कारण होती है, तो उसमें एलिजाबेथ रॉस ने स्टेजेस दी थी ग्रीफ की, जो कि डाबडा से बोली जाती है, DABDA। सबसे पहले इंसान को डिप्रेशन की समस्या आती है, मरीज दुखी होता है, परेशान होता है, डिप्रेस्ड या अपसेट होता है। उसके बाद उसे एंगर आता है कि वो गुस्सा होता है, भगवान पर कई बार गुस्सा निकालता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद कई बार माइग्रेन की स्थिति आती है,
बार्गेन में वो भगवान से इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे ठीक कर दो भगवान, मैं जाऊंगा और प्रसाद चढ़ाऊंगा या ये करूंगा वो करूंगा, मन्नत मांगता है। उसके बाद डिप्रेशन की, उसके बाद लास्ट में एक्सेप्टेंस आती है जी जिसमें मरीज जो है एक्सेप्ट कर पाता है अपनी प्रॉब्लम को और जो प्रोडक्टिव रास्ता है उस पर चलने के लिए अपने को पूरा प्रॉपरली मानता है। तो हमें अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस में आना जरूरी है, जिसमें सबका, समाज का तो रोल है ही, फैमिली मेंबर, स्पाउस का और बाकी लोगों का, मीडिया का भी, जैसे हम लोग आज जागरूकता और इन सब के लिए काम कर रहे हैं, हम सबका ही रोल है। अगर हम सोसाइटी में इस तरह से लोगों को एक्सेप्ट करें, उनको घूरे ना, शेयर ना करें, कहीं हमें मिलते हैं लोग तो उनको हम डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये छूत की बीमारी नहीं है, ये तो एंडोजीनस है, ये जेनेटिक बीमारी है। हमें इसमें इस तरह से अगर अच्छे से सेंसिटिवली ट्रीट करें लोगों को तो स्टिग्मा थोड़ा कम हो सकता है और मरीज इलाज कराने के और ज्यादा आगे आ सकते हैं। और अब ये महिमा चौधरी जी हैं, छवि मित्तल जी हैं, ये लोग सामने आके लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि खुल के अपनी बात बता के, तो लोगों में भी लोगों को एनकरेज करें कि ट्रीटमेंट लें। तो बहुत सारी महिलाएं जो कि कुछ अपने जैसे सर ने बताया कि अपनी पर्सनल बायसेस की वजह से ट्रीटमेंट नहीं लेती, उनके बायसेस थोड़े कम होंगे और वो भी, इनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा कि वो जाए और ट्रीटमेंट लें। जी बिल्कुल। गगन जी देखिए, कहते हैं कि कैंसर बहुत जल्दी फैलता है, हमने ये सुना भी है, हालांकि कितनी सच्चाई है वो आप आज बताएंगे। जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है तो कहा जाता है कि ये एक स्टेज में आने के बाद फैलना शुरू हो जाता है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? और अगर ये फैलता है तो कौन सी स्टेज में फैलता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ये तो ऑन्कोलॉजी का क्वेश्चन है, हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते थे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत छोटी स्टेज में 5 मिलीमीटर से अगर ज्यादा साइज का होता है तो उसकी फैलने की प्रवृत्ति होती है। इसी वजह से कीमोथेरेपी का इस डिजीज में बड़ा स्ट्रांग रोल है एंड इसमें कीमोथेरेपी का इस वजह से सर्वाइवल बेनिफिट भी है कि कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट्स को सर्वाइवल बेनिफिट होता है। तो इसकी प्रवृत्ति तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। ये आपके क्वेश्चन का जो है ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या था, आप क्या पूछ रहे थे? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द कौन सी स्टेज में फैल सकता है और कैसे रोक सकते हैं सर? मैम ये स्टेज 1 में भी फैल सकता है, ये बिल्कुल स्टेज 1 में भी फैल सकता है। सो स्टेज 1 में भी इसकी फैलने की टेंडेंसी होती है डिपेंडिंग अपॉन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रेड कितना है, हार्मोन स्टेटस कितना है, वो सब चीजों की बात वो तो ऑन्कोलॉजिस्ट केस टू केस बेसिस पे बताते हैं, बट पॉसिबिलिटी इवन स्टेज 1 में भी रहती है। एंड उसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इस डिजीज के अंदर कीमोथेरेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, हार्मोनल थेरेपी का और सिस्टमिक थेरेपी। उसमें इस डिजीज में जब भी रिकमेंडेड हो तो कीमोथेरेपी को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये डिस्कशन करना बैठ करके कि नहीं हम कीमो अवॉइड करना चाहते हैं इज अ गुड डिस्कशन, बट उसके बाद जो ऑन्कोलॉजिस्ट रेकमेंड करे उसको जरूर मानना चाहिए। हम भी चाहते हैं कीमोथेरेपी अवॉइड हो एज ऑन्कोलॉजिस्ट, जिसमें अवॉइड हो सकती है उसमें हम जरूर रेकमेंड करते हैं अवॉइड। ठीक है डॉक्टर हेमिका, क्या आपने कभी ऐसे किसी पेशेंट से बातचीत की है जो ये कहते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से उसको रिलेट करने लगते हैं, हालांकि प्रेगनेंसी उसका कारण नहीं होता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब मिथ की बात कर रहे हैं तो इस सवाल पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही डायग्नोज जब की जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर उनको होता है। इस तरह से लोगों में कई बार मिथ होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक्चुअली प्रोटेक्टिव है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। जैसे अभी हमने डिस्कशन में सर के थ्रू सुना भी कि प्रेगनेंसी जितना अर्ली होगी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज ये ईस्ट्रोजन साइकिल को ब्रेक करके ब्रेस्ट कैंसर का परसेंटेज कम करती है। लेकिन अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर और प्रेगनेंसी साथ में हो जाए तो वो अपने आप में एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि इलाज के लिए हमारे हाथ बन जाते हैं। जो भी इलाज ब्रेस्ट कैंसर में जो कैंसर की सेल्स के खिलाफ काम करने वाले सर्जरी को छोड़ के, वो सारे के सारे बच्चे की डेवलपमेंट पर भी बुरा असर करते हैं, क्योंकि बच्चे में भी ग्रोइंग सेल्स है, कैंसर में भी ग्रोइंग सेल्स हैं, और जो मैकेनिज्म है वो ग्रोइंग सेल्स को मारने का है, इसीलिए हमारे बाल भी झड़ते हैं। तो जो चीज कैंसर को मारेगी वो बच्चे की ग्रोथ को खत्म करेगी। तो ऐसे केस में गायनोकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ में बात करके अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फीजिबल है, अगर टाइम लिमिट है, तो आप वो उसके लिए बिल्कुल जाना चाहिए। और महिला को अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इलाज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि ये महिला का अपना चॉइस है कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है, इलाज नहीं लेना चाहती, या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके इलाज लेना चाहती है, ये उसकी चॉइस है। बट अल्टीमेटली हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ट्रीटमेंट लेके एमटीपी लेके ट्रीटमेंट पूरा ले सकते हैं और अपनी लाइफ आप पूरी बढ़ा सकते हो और प्रेगनेंसी बाद में भी ली जा सकती है।
बिल्कुल। डॉक्टर गगन, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। रेकरेंस की हम बात करते हैं कि बार बार ये जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है ये हो जाती है, लेकिन ना इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पहले शुरुआत में जो इलाज हमने लिया होता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो वीक बना चुका होता है। अगर ट्यूमर के दौरान हमने कोई सर्जरी कराई है, उसके बाद वो कैंसर में डेवलप हो गया, दोबारा सर्जरी कराने के लिए पेशेंट की बॉडी में उतनी ताकत होनी चाहिए, उतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए जो उसे लगता है कि पहले ट्यूमर की सर्जरी के दौरान उसके अंदर से चली गई है। वो कमजोरी, उसके बाद रेगुलर मेडिसिन देना, कहीं ना कहीं बॉडी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे आने वाले वक्त में होती है जब उसको लगता है कि दोबारा वो कैंसर में डेवलप हो गया है और उसे इलाज लेना है। तो क्या किया जाए उस कमजोरी का? अगर दोबारा से रेकरेंस होती बीमारी की, इलाज तो हो जाएगा लेकिन इलाज के लिए बॉडी उतनी स्ट्रांग भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एंड इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब ये है कि हम एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स कैसे झेलें अपनी बॉडी में। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट रन किया जाए कि हम एडवांस, तो जब हम रिकरेंस है तो भी एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट झेलनी पड़ती हैं या जो भी कुछ करना पड़ता है। सो द पॉइंट इज कि एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट झेलने के लिए आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कार्डियक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और इन दोनों चीजों को बिल्ड करने का एक ही तरीका है, वो है एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज हर पर्सन को, आपको, मुझे, सब लोगों को रेगुलरली करनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी बॉडी में कोई एडवर्स टाइम आए तो हमारी बॉडी डीकम्पनसेट ना कर जाए। बहुत लोग बोलते हैं जी हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप हमारी कंट्री में एवरेज मसल मास देखें तो मसल मास हमारी कंट्री में बहुत कम होता है लोगों का, और उसका रीजन ये है कि हम लोग किसी प्रकार की भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करते। अब ये हो सकता है सुनने में लगे कि ये मैं डिस्कशन जो कर रहा हूँ ये ऑफ द टॉपिक है, बट नहीं है। ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से जेन्युइनली इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है टू सस्टेन ट्रीटमेंट्स। आज की डेट में रेकमेंडेड है कि जब आप ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट्स का कीमो कर रहे हैं, तो आप पेशेंट्स को रेकमेंड करिए एक्सरसाइजेस इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग विच इज गुड फॉर द हार्ट, in terms of resistance training which is good for the muscles and the core strength, which not only improves the immunity, it also improves the mood, it improves the outcomes. So there is one study which says कि आप जब एक्टिविटी करते हैं तो आपका आउटकम जो है वो बेटर आता है आपकी उसी सेम ट्रीटमेंट का। सो आपका क्वेश्चन अगर ये है कि भाई क्या हम किस तरह से एडवांस ट्रीटमेंट एक प्रीवियसली ट्रीटेड बॉडी में झेलें, उसका आंसर ये है कि प्रीवियसली ट्रीटेड बॉडी हो या अनट्रीटेड बॉडी हो, कोई भी बॉडी के लिए एडवांस ट्रीटमेंट झेलना इतना आसान नहीं होता। एंड उसका एक ही तरीका है कि हम लोग सब के सब एक अच्छी हेल्दी स्टेट में रहें इन आवर रेगुलर लाइफ। हमें मालूम नहीं कल हमें क्या झेलना पड़ जाए। सबको कैंसर नहीं होगा, किसी को कुछ और भी हो सकता है, किसी को कोई एडवांस कोविड हो सकता है, किसी को जो हुआ थे लोगों को, किसी को कोई और कोविड की प्रॉब्लम आ बात तो सकती हमने है। देखा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की हमें बहुत जरूरत है, अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक महामारी जब आई तो उसने हमें ये सिखाया कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होना, अच्छी होना, इम्यूनिटी कितना ज्यादा जरूरी है। खैर फिलहाल वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कैसे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता लाई जाए और क्या सावधानियां बरती जाए। धन्यवाद। तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आज के इस कार्यक्रम में क्या जागरूकता होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको हमने बताने की कोशिश की। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स जुड़े थे, उन्होंने अपनी राय साझा की और बहुत सारी कंफ्यूजन आपके मन में होगी इस गंभीर बीमारी को लेकर। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए वो भी दूर हुई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।